Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. This is our regular Wednesday meet, and I'm Shashidhar, your host. I welcome you all to this Wednesday meet, and the topic for today is Maya. Very favorite, intricate topic on spirituality. So Maya, the trap. That is the session for today. If there is some disturbance, I will request you to go on mute. And whenever you are ready to share, you can unmute and share. So Samsung A235F. Okay. So in case you can say, you can change your name, it will be better. We can correct with each other. Yes. And if I'm not mistaken, Seeraj ji hai, Seeraj madam hai, Bombay se. Yes. Okay. I cannot open my. That's fine. So just go on mute. If there is any disturbance, just go on mute and welcome. Let's welcome Seeraj ma'am also. She is Yes. from Mumbai and she is 90 years young. So she is more young than all of us. No? Yes. Yeah. So welcome to the program. Okay. So now we are ready to start our discussion on the topic. So Maya, the trap. Yes. So सीरज जी मैं आपको म्यूट पे कर रहा हूँ जब आपको शेयर करना होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा ठीक है ओके यस सो डॉली जी वेलकम एंड वी आर off to the topic straight away. So Maya, the trap. When we hear this topic, what comes to our mind? All of us are aware of this topic of Maya. This is always been a subject of great interest for all the spiritual seekers. So let us have some view on your idea or interpretation of what is Maya. And the purpose of the session will be not to discuss this topic of Maya, but see how in our individual life, where Maya is impacting us and how we are in the grip of Maya. If you can see that, then the promise of the session is that by the end of the session, you will be able to have some breakthrough in that particular area where you are in bondage, where you are in some kind of a prison. जहां आप माया जाल में फंस गए हैं वहां पे आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले देखना ये है कि बंधन कहाँ है. मुक्ति तो तब होगी जब बंधन दिखेगा. तो माया की जकड़ ऐसी होती है कि आपकी लाइफ में सफरिंग और मिजरी है, दैट मीन्स माया है. अगर आपकी लाइफ में परेशानी है, दुख है, मतलब माया है. आप माने या ना माने, आप जाने या ना जाने. तो आज का सेशन सिर्फ इसलिए है कि हम देख सके हमारी कौन सी लाइफ का वो एरिया है जहां पे हम माया के गिरफ्त में हैं, माया के जाल में फंसे हैं. जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसमें कोई इंसेक्ट फंस जाता है तो उसकी क्या हालत होती है. तो हमारी हालत उससे भी बदतर है असल में, क्योंकि हमको मालूम है कि हम फंस गए. उनको तो मालूम नहीं होता. उनको तो ये है कि जिंदा है या मर गए, इतना ही मालूम होता है. हमको मालूम है कि हम फंस गए हैं, इसलिए हमारी हालत और खराब होती है, हम छटपटाते रहते हैं. So that will be the promise of this program. So first we will go into the introduction. Let's see what is Maya. So anybody who wants to share, feel free to share your views. And there are no right answers, no wrong answers. We are all in an inquiry, and this session is an inquiry. Correct? Yes, Leslie, go ahead. Well, I mean, again, Maya itself is a huge topic. So, अभी सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा, and that is what seems so, what appears but not true, but what appears is Maya. One thing. Second is कि अभी आपने बोला अगर दुख है तो माया है. नहीं, मेरा मानना ये भी है कि अगर बहुत खुशी भी है तब भी माया ऑपरेट कर रही है. तो दोनों तरीके से, इफ यू आर इन ज्यादा ही खुश हो और किसी चीज पे खुश हो तो वो भी माया काम कर रही है, अगर बहुत दुखी हो तो वो भी माया में जकड़ में हो. बिल्कुल. So that is one line explanation that I could give. Absolutely right. Absolutely right. Very good. Let's acknowledge Leslie. A very valid point. Maya is an appearance, and the whole life is actually an appearance. We did the law of appearance. Remember? हमने कुछ दिन पहले स्पिरिचुअल लॉस में जो कवर कर रहे थे, हमने लॉ ऑफ अपीयरेंस किया था.
हाँ, तो लॉ ऑफ अपीयरेंस में क्या है, जो दिखता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिखता नहीं है. दैट वाज लॉ ऑफ अपीयरेंस, इट इज एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड explanation of what is Maya. So Maya is an appearance, very rightly said. And why I said only dukh, because when it is paining, only then you look at it. जब आप खुश हो तो आप पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, यू डोंट बॉदर अबाउट व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज नॉट लाइफ. तो अगर आपको इंक्वायरी करनी है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, माया को आइडेंटिफाई करना है, तो दुख में आइडेंटिफाई करो, क्योंकि दुख में आपको जहां पेन होगा वहीं पे हीलिंग होगी, और वहीं से आपको दरवाजा मिलेगा, डोरवे खुलेगा माया से फ्री होने का. करेक्ट. सो माया हैज टू हर्ट यू, दैट ग्रिप हैज टू really suffocate you, then you will look for the freedom. Correct. So that was the context. Very well said, Leslie. Let's acknowledge Leslie. Yes. Who else would like to say? Kishore ji. Yes, Kishore ji, go ahead. Unmute करिए किशोर जी. किशोर जी unmute करिए and then you can speak. Yeah. Hello. Yes. So from my perspective, attachment एक माया है. जहाँ पे भी अटैचमेंट है वही एक बहुत बड़ा माया जाल जैसे जकड़ जाती है. Okay. So attachment, राग द्वेष, जिसको बोला गया है राग द्वेष. हाँ, attachment and aversion. अट्रैक्शन एंड एवर्जन. सो दोनों ही अटैचमेंट का एक के दो फेसेस हैं अटैचमेंट के. वन इज अट्रैक्शन, वन इज एवर्जन. ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए. तो इच्छा और अनिच्छा, ग्रहण और त्याग, हाँ ऐसे ही बोलते हैं ना. तो शास्त्र में इसी तरीके की लैंग्वेज है. तो उसमें हम देखेंगे दोनों ही माया के चपेट में है. तो कहीं पे भी अटके हो, सुख और दुख, जैसे लेस्ली ने कहा, दोनों माया में अटके हुए हो. तो जब माया से फ्री होते हो तो आनंद होता है, और आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है. तो सुख और दुख मीन्स प्लेजर और पेन मीन्स माया. यस, वेरी गुड. लेट्स आइडेंटिफाई मोर. एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? तो गुरकीरत जी, अनिरुद्ध जी. ओके, डॉली जी, गो अहेड. हाँ सर, फक्त शब्दों में अगर कहा जाए तो अगेन दैट इज एन इल्यूजन, दैट व्हिच इज नॉट ट्रू, बट दैट अपीयर्स टू बी ट्रू. ओके, या what appears to be true and it is not the true. The illusion. Okay. तो okay, let's stick to that. That is good enough. So मिलता है, खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, दुखी हो जाते हैं सर. एंड okay, फिर जब पता चलता है कि हाँ ये जो मिला वो भी मिथ्या है, जो नहीं मिला तो वो तो नहीं मिला. okay, ठीक है, समझ गए. That's what I feel. Yeah, thanks. Yeah. Very good. Let's acknowledge Dolly ji. Yeah, Nivedita ji, very good. Anybody else who has any idea, anything that you want to share? If you have any question, you're welcome. कोई सवाल पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, please go ahead. Rishi, I have one input on this. माया हम लोग बोलते हैं मिथ्या है, हम बोलते हैं कि वो हमारा एक अटैचमेंट है, और हम बहुत नेगेटिव टर्म में भी और पॉजिटिव टर्म में भी यूज करते हैं. लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ मेरे ख्याल से माया का ही एक रूप है, और अर्थ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है. तो आजीविका जो हमारी होती है वो सारी हमारी माया पे ही डिपेंडेंट होती है. और ये भी बात सत्य है कि जीवन में कभी भी माया के बिना कुछ होता नहीं है. ओके. तो आई थॉट कि मैं एक पर्सपेक्टिव ये भी देना चाहता हूँ कि हम लोग बात करते हैं कि माया है, मिथ्या है, एक इल्यूजन है, अटैचमेंट है, लेकिन हम लोग चाहकर भी उससे डिटैच नहीं हो सकते, हम लोग चाहकर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते. ओके, ऑलराइट. तो आप माया से आपका मतलब वेल्थ है क्या? आपका इंडिकेशन थोड़ा वेल्थ की तरफ जा रहा था. उसके बिना जी नहीं सकते. मेरा वही है कि हम माया को जो एक लेमन के टर्म में यूज करते हैं डेली में, तो डेली लैंग्वेज में, तो हम बोलते हैं यार मोह माया में क्या रखा है. हाँ, ये जनरल आम भाषा में यही बोलते हैं, सब मोह माया है, सब मोह माया में क्या रखा है. When I was working in Crompton Greece, my boss used to say that मोह माया, सब मोह माया. कलेक्शन आ गई कोई बात नहीं, ऑर्डर आ गया कोई बात नहीं, सब मोह माया, ज्यादा परेशान मत हो. So yes.
So that is a colloquial way of saying moh maya, but then we have to understand what is moh. Moh is attachment, rag dvesh, which is definitely which will bind a person. Any individual, it will bind. Correct? Maya, when we say, let us right now, we are looking at, it is an appearance. तो सत्य क्या है, असत्य क्या है और मिथ्या क्या है, ये क्लियर होना चाहिए. Then we will know what exactly we are talking. So we will do that shortly. So just hang on, stay with the conversation, and let's see what others have to share. Yeah. Thanks, Aman, for sharing that. Very good. Thank you. Right. Anybody else who wants to share anything? Okay. So we have had some people who shared. Anirudh ji, कुछ share करना चाह रहे हैं? What is Maya? ये थोड़ा मुझे ये जरा कि माया क्या है ये जरा बताएंगे. हाँ, वो तो बता ही रहा हूँ. आपका कोई ओपिनियन है, इंटरप्रिटेशन माया है तो का, जैसे माया का जो मैं समझता हूँ, जो मेरी गलती भी हो सकता हूँ, कि माया जो है, जो सामने नजर आता है सब माया है. Am I right? वो बोलते जाइए, आप बोलते जाइए. अभी आ रहे हैं, डिस्कशन पे आएंगे ना हम सब लोग. तो जो सामने है, जो फिजिकल चीज सामने नजर आती है वो माया है, और जो नजर नहीं आती वो स्पिरिचुअल है, सोल है. तो एनीथिंग फिजिकली सीइंग बाय अस इज माया. ओके. तो परंतु जो भी है वो अभी आप और इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मेरा सोचना ये है कि जो माया के बारे में मेरा सोचना ये है कि जो मिनिमम नीड्स हैं अपनी, ठीक है जी, उतने तक हमें उसकी ध्यान रखना चाहिए. वो अगर मिनिमम नीड्स जो जिसकी जितनी भी हैं उस पर ध्यान रखे, और उससे मिनिमम नीड्स से जो ऊपर है उस पर ध्यान नहीं रखे. वो अपना नहीं, अपना वही है जो हमें जरूरत है, जो मिनिमम हमें जीने के लिए जो चाहिए. उसके अलावा जो मिनिमम नीड्स से एक्स्ट्रा है वो अगर जमा करते हैं वो अपना नहीं है, वो माया है. अनिरुद्ध जी, अभी मैं इसको यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि आप जरूरत वाली अगर बात करेंगे तो वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है ना. तो आप कह रहे हैं कि जो जरूरत से ज्यादा है वो माया है. दैट मीन्स, हाँ जी, आप कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं. तो अभी मैं इसको पार्किंग में डाल देता हूँ, इसको पार्किंग लॉट में डाल देता हूँ. वी विल कम बैक टू दिस लेटर, बिकॉज दिस इज नॉट द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ. ठीक है जी? ठीक है. Okay, let's acknowledge Anirudh ji. Yes. So now, if anybody else has to share anything, and this link is open, anybody can join at any point of time. So I don't see any reason why somebody cannot join. Link दिया हुआ है, उस link पे सिर्फ click करना है, and they will be in. There is no permission required. Yeah. गुरकिरत जी, आपके लिए है वो. तो आपके फ्रेंड अगर आना चाहते हैं, he can just click on the link. That will be fine. Right. So now coming back to what is Maya. So Maya is a spiritual concept. First of all, we need to understand that. कुछ scriptures में कहा गया है कि it is a creation or it is a divine power of the God. जैसे महाविष्णु के हम बोलते हैं योग माया है, मायापति उनको बुलाते हैं. माया is under his beck and call. तो God का एक पावर है माया, by which the truth is hidden. The truth means the God is hidden. Truth is God, right? So the God is hidden, and then the whole, you can say, the operation of the universe is an appearance of that God. That means, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि माया जो है गॉड का ही एक डिवाइन पावर है, by which the, you can say, the quality of Maya, which is आवरण बोलते हैं. आवरण is something which is covered and hidden. So the God or the truth is hidden, right? And the world is an appearance. Now, why world is called mithya? It is not satya, it is not asatya. सत्य क्यों नहीं है, पहले तो ये देख लेते हैं कि सत्य किसको बोलते हैं. सत्य वो है जो इटर्नल है, अनचेंजिंग है, वो सत्य है. हम जानते हैं पूरा जगत, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स, है ना. तो अर्थ की बात कर रहे थे, तो नॉट ओनली अर्थ, द होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो है वो इज ऑलवेज चेंजिंग, है ना, कंटिन्यूसली चेंजिंग. तो ऑब्वियसली ये सत्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, which means it keeps on changing. It is not permanent, it is temporary.
इट इज ऑल शॉर्ट लिव्ड, है ना। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और जन्म और मृत्यु किसकी हो रही है? ये प्रकृति की हो रही है। दैट मीन्स जो जीव है उसकी हो रही है, करेक्ट। तो ये जो भी हो रहा है जगत में, ब्रह्मांड में, ये जो है ये सत्य नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? ये असत्य है। असत्य का मतलब है कि मैं पास गया और मैंने छुआ और वो है ही नहीं। तो अगर मैं जाके ट्रेन की पटरी में खड़ा हो जाऊं, रेल की पटरी पे खड़ा हो जाऊं, और आगे से ट्रेन आए और वो मैं लूं ये तो ये इल्यूजन है, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, है ना। क्योंकि व्यवहारिक सत्य यही है कि ट्रेन इस जगत का एक पार्ट है और वो है। सो द ट्रेन इज गोइंग टू क्रश यू। अगर आप रेलवे ट्रैक पे खड़े होंगे तो बॉडी और ट्रेन दोनों एक ही रियलिटी पे हैं, तो एक ही तल पे हैं, तो क्या होगा? ट्रेन विल क्रश द ह्यूमन बॉडी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मिथ्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना वो सत्य है ना वो असत्य है। यहां तक पहले क्लियर होना चाहिए, है ना। तो सत्य वो है जो हमेशा है, ऑलवेज एग्जिस्ट। असत्य वो है जो नेवर एग्जिस्ट। जैसे आप बोलो गधे के सर पे सींग, या हमारे सर पे सींग है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, है ना, काइंड ऑफ ए थिंग। तो नेवर एग्जिस्ट ये असत्य है। व्हाट एग्जिस्ट परमानेंटली, इटर्नली, तीनों कालों में, हर अवस्था में वो है, वो सत्य है। तो ये जगत जो है ना सत्य है ना असत्य है, इसलिए इसको बोला गया है मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या है? इट इज एन अपीयरेंस, इट इज एग्जिस्टिंग नाउ, देयर इज नो गारंटी इट विल एग्जिस्ट टुमारो और द नेक्स्ट मोमेंट। राइट नाउ इट इज एग्जिस्टिंग। तो जो दिख रहा है, जो अनिरुद्ध जी ने कहा, जो अभी दिख रहा है वो है, वो मिथ्या है। क्योंकि अगले पल क्या होगा पता नहीं, करेक्ट। एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। So this body mind is part of the universe, correct. So उसका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, पुनर्जन्म भी होता है। तो बॉडी एंड माइंड का पार्ट, यूनिवर्स का एक पार्ट है ये, एंड इट इज मिथ्या। yes it is mithya. Now it is a very dangerous interpretation to make that we are all mithya. नहीं, Vedanta says and even the scripture says body and mind are mithya. But who am I? Who am I? I am that eternal truth. मैं हमेशा था, हूं और रहूंगा। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम आत्मन, राइट। सो आई एम द ट्रूथ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड दिस? वेदर यू बिलीव इट और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग। फर्स्ट यू नीड टू एटलीस्ट गेट द कंसेप्ट राइट। तो जगत मिथ्या इसलिए बोलते हैं और आत्मा सत्यम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आत्मा सत्य है। बल्कि जगत जो है ना सत्य है ना असत्य है, वो मिथ्या है। इट इज एन अपीयरेंस। और मिथ्या का परफेक्ट डेफिनेशन ये है, जो दिखता है वो सत्य नहीं है। सही है ना? दिख क्या रहा है? बॉडी दिख रही है, पर ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? आत्मा, और वो दिखता नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ अपीयरेंस, दिस इज द लॉ ऑफ माया। नॉट लॉ ऑफ माया, बट दिस इज व्हाट इज माया, करेक्ट। नाउ हाउ डज दिस इम्पैक्ट अवर लाइफ? माया क्लियर है, तो नाउ वी हैव टू लुक एट हाउ डज दिस इम्पैक्ट अवर लाइफ, और अदर हाउ डज इट इम्पैक्ट माई लाइफ। तब इस सेशन का कोई पर्पस होगा। माया इन जनरल तो हमने समझ लिया। अभी तक जो समझे हैं, इस पे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? एनी क्वेश्चंस on what I have said till now? Clear है? Agreed? Accepted? Okay, great. So now let us look at how Maya is impacting my life. So where is my life happening? मेरी लाइफ कहाँ हैपनिंग हो रही है? Right now it is happening in the area of health, wealth and relationship. And Maya कैसे ऑपरेट करती है? Maya operates through the mind. The whole truth or the truth of God is hidden by the
three gunas of the Maya. It enters through allurement Sorry, I and got then disconnected. becomes poison. Yeah, sorry, I got No disconnected. worries. The geo connection is really bad today. Okay, so we are talking of was any discussion happening, Leslie? So we were discussing that Maya attacked us. We gave into the allurement of conducting a call, and that allurement became poison. Okay, got it. Right. So yes, so what we were talking of before we got rudely disconnected, we were talking of, somebody just remind me, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? You said where is life happening? Oh, where are we happening or something Correct. like that. So yeah, so how is Maya impacting us? Because the area of our life is primarily in three major areas: health, wealth, and relationship. Yeah. And how does Maya impact us is that mind has the tendency to latch on to, you can say, unreal things. Unreal things means unreal concepts, beliefs, and because of that, the illusion binds the individual to the worldly desires and pleasures. So the individual gets attracted or attached to the worldly pleasures and desires, and in pursuit of that, he ends up, or the individual ends up in suffering and misery. दुख ज्यादा होते हैं, सुख कम मिलते हैं. ये हमारी लाइफ में का भी पैटर्न है, देखा होगा. बहुत 10 दुख मिलते हैं तो उसके बाद एक सुख मिलता है. तो ओवरऑल, if you are entangled in Maya, the result will be suffering and misery. तो अपनी लाइफ में हम देखें अगर कहाँ पे सफरिंग और मिजरी है तो हमको इंडिकेशन मिल जाएगा. कहाँ पे हम ट्रैप्ड हैं वहां पे हमको इंडिकेशन मिल जाएगा कि माया के जाल में. एंड दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन द केस ऑफ आइदर वेल्थ और रिलेशनशिप. हेल्थ में अगर हमको कोई बीमारी होती है, राइट, सो वी आर एक्चुअली इन द अवेयरनेस ऑफ व्हाट आई एम दिस बॉडी. मैं बीमार हो गया, मैं नहीं कहता मेरा शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, मुझे चोट लग गई, करेक्ट, मैं हॉस्पिटल में हूँ, हालत खराब है, whatever. So we actually relate to our body as our identity. This is called body consciousness, and this ignorance or unawareness is the reason for suffering and misery. How many of us get that? Maya can impact us only in the area where awareness is missing. जहाँ पे अंधेरा है वहीं पे हमको प्रॉब्लम होती है. जहाँ पे इग्नोरेंस है, जहाँ पे अनअवेयरनेस है, वहीं पे माया अटैक करेगा. अगर पूरी अवेयरनेस के साथ, जहाँ पे पूरी लाइट है, जहाँ पे पूरी लाइट है, अवेयरनेस है, नॉलेज है, विजडम है, वहां पे अब माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. राइट. सो लेट अस लुक इनटू द एरिया ऑफ हेल्थ. अगर बॉडी को कुछ हुआ है, वी विल ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ दैट बाय गोइंग टू द डॉक्टर और गोइंग टू द हॉस्पिटल, व्हाटएवर. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस इज हैपनिंग टू द बॉडी एंड आई एम ए विटनेस ऑफ दैट. मुझे दिख रहा है कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है और मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ डॉक्टर के थ्रू. तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा ये बोलने के कि मैं मर गया. जेट पॉइंट. तो बॉडी से अटैचमेंट जितना कम होगा, माया के गिरफ्त से उतने दूर होंगे. इतना क्लियर हो रहा है? एकदम से तो नहीं होगा ये, बट देन एटलीस्ट दैट अवेयरनेस हैज टू बी देयर. आई एम नॉट द बॉडी, आई हैव ए बॉडी. करेक्ट. नाउ वेल्थ वाज अ टॉपिक वी डिस्कस्ड. हाँ, अमन जी बोल रहे थे माया के बिना गुजारा नहीं है. यस. इन द ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड वेल्थ इज इंपॉर्टेंट, एंड अक्सर हम माया को वेल्थ को ही माया बोलते हैं. पर धन लक्ष्मी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इस धन को माया बोलना गलत है. एक्चुअली अटैचमेंट टू द वेल्थ कैन बी कॉल्ड माया, क्योंकि वेल्थ ऐसी चीज है जो आएगी जाएगी.
It is not going to be permanent, and it is, by the way, only it's a token of exchange. पहले बार्टर होता था, अब एक एक्सचेंज है. इट इज एन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. उसका एक टोकन है ये मनी. तो उससे अगर अटैचमेंट हो गई तो वो माया है. एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट, अट्रैक्शन और एवर्जन इज माया. गेटिंग इट? नाउ द होल थिंग इज, माया का गिरफ्त कैसे आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इंडिविजुअल फील्स, एक मैं हूं और एक संसार है. One world out there and I am separate from the world. When I say I am separate from the world, then there is a gap between me and the others. Yes. And if I have to be successful, I have to be wealthy, I have to accumulate wealth, I have to be better than them, and then I have to compete and become more successful than them to survive. This is one way of living. So ये जो whole concept is what? The whole concept is of separation, which is created by Maya. जिसको हम बोलते हैं, हमारे अंदर एक अहंकार है, ईगो है, जिसने हमको सेपरेशन के लिए क्या बोलेंगे, एट्यून कर दिया है. रादर वी आर एट्यून टू सेपरेशन बाय द ईगो. तो आई एम सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट? मैं यहाँ हूँ, संसार वहां है, और मैं और संसार अगर यहाँ पे है तो एक तीसरा भी होना चाहिए जो हमारा क्रिएटर है. तो देयर इज अ गॉड आउट देयर हु हैज क्रिएटेड बोथ ऑफ अस. तो नाउ दिस इंडिविजुअल इज लुकिंग फॉर कंप्लीशन इन द आउटसाइड वर्ल्ड, कि इस संसार में ऐसा कुछ है जिसे पाके मैं पूर्ण हो जाऊंगा, और वो खोज जारी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंसेप्ट दैट आई एम इनकम्प्लीट. मैं अपूर्ण हूं, मैं इनकम्प्लीट हूं. ये बेसिक कंसेप्ट है जो माइंड ने पकड़ रखा है, जो गलत है. रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग कंसेप्ट. मैं अधूरा हूं, मैं अपूर्ण हूं, और इस संसार में कुछ ऐसा है जिसको पाके मैं पूर्ण हो जाऊंगा. So the whole conquest of, or the quest of accumulation starts. बाहर क्या मिलेगा आपको? बाहर की दुनिया में क्या मिलेगा? वस्तु, व्यक्ति या डेसिग्नेशंस, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये सब मिलेंगे. एक्यूमुलेट, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. ये एक्यूमुलेट किया, वो एक्यूमुलेट किया, ये कुछ किया, तो क्या कर रहा है वो? परिग्रह. स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग प्रॉपर्टी. तो बंगला, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, लोगों को. You are actually possessing the people. Getting it? Because that will make me complete. Does it happen that way? अगर मैं आधा हूं, अधूरा हूं, तो इस संसार में ऐसी कोई चीज है जो मुझे पूर्ण करेगी? नहीं. पर ये समझ में नहीं आता है. जैसे ये ज्ञान आ जाएगा कि बाहर संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पूर्ण करेगा, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, खोज खत्म हो गई. ईगो की खोज खत्म हो गई. बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पूर्ण करेगा. ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई डेसिग्नेशन, ना कोई रिजल्ट, ना कोई अवार्ड, ना कोई रिवॉर्ड. कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पूर्ण कर सकता है अगर मैं अपूर्ण हूं. तो द होल assumption that I am incomplete and I am not complete is wrong. Yes or no? मैं पूर्ण हूं. Now you go and enjoy the life. How many of you can get that? तो अगर आप लाइफ के अचीवमेंट से परेशान हैं, दुखी हैं, और आपको लगता है और अचीव करने से पूर्ण हो जाओगे, स्टॉप. यू आर इन अ रैट रेस. इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ फुलफिलमेंट. आप अंदर से अगर अपूर्ण हैं, दुनिया की, संसार की कोई भी वस्तु आपको पूर्ण नहीं कर सकती. ये माया का ग्रिप है, और इसी माया को तोड़ना है. मेकिंग सेंस? Yeah. So let's have some people share what is opening up.
look into your life and see where it is impacting you. I'm just throwing you some pointers. Yes, Leslie, go ahead. मेरी क्वेरी है एक्चुअली, उस टाइम आप बोल रहे थे तो मैंने रोका नहीं। आपने एक सेंटेंस बोला था जिसमें बोला कि जहां अवेयरनेस है वहां पे माया नहीं है, समथिंग लाइक दैट। That is the doorway to be free from Maya. Yeah. Okay. Now, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ये आता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है एंड he doesn't he's not formed, he's not seen himself and he's not formed in a mirror, he's not seen himself and he's not formed कि I am the body. तो उससे पहले भी अवेयरनेस थी, उसके बाद भी अवेयरनेस थी, बट कुछ बदलता है। सो बेसिकली मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि अवेयरनेस डज नॉट किल माया, रादर द क्रिएशन ऑफ the creation of the thought, the creation that I am separate or I am this body, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया। बॉडी इज अ कॉन्सेप्ट, तो बॉडी में जो समझा वो एक कॉन्सेप्ट बन गया। तो बेसिकली मुझे जहां यू कैन सी के मैं सब कुछ कॉन्सेप्ट में देख रहा हूं, वो माया ब्रेक करता है। वेयर एज अवेयरनेस तो हर पल, हर घंटे, हर टाइम होती है। रादर जहां अवेयरनेस है वहां पे माया है या नहीं है वो भी नहीं होती। Okay, so you have to understand this. When we say, see, when we talk of awareness, it is a word which can be easily confused. Yeah. Awareness of mind, awareness of जहां पे mind focus करेगा वो भी तो awareness ही है ना, but it is a product of the mind. Focus of the mind is also called awareness, and who I am as a soul is consciousness, which we say. So normally awareness और consciousness को हम थोड़ा सा अलग अलग बोलते हैं ताकि separation या उसको distinguish करने में आसानी हो, है ना। So who I am is a witness consciousness बोलते हैं, soul को witness consciousness बोलते हैं। So consciousness is related to the level of soul. Awareness is normally related to the power of the mind. And mind के through ही तो हमारा माया का impact आ रहा है। Maya impacts only through the mind, only through the gunas. तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यही माया के 3 लेयर्स हैं जिससे सत्य को छुपाया गया है। पूरा ब्रह्मांड जो है इन्हीं 3 गुणों पे तो चल रहा है। प्रकृति में गति जो आती है वो इन 3 गुणों की वजह से ही है। या तो तमोगुण है, या रजोगुण है, या सतोगुण है। अब इसको अगर माइंड के थ्रू अवेयरनेस में जाओगे तो माया का फ्रीडम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माया का ग्रिप में ही है। तो करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है, इंस्टेड ऑफ जनरली लुकिंग इनटू हाउ टू बी फ्री फ्रॉम माया, लुक एट द पेन एरिया। पेन एरिया कहाँ है? उस पेन एरिया में देखिए कि माया का ग्रिप आपको कहाँ पकड़े हुए है। वहां पे जब आप अंधेरे में उजाला लेके आएंगे, इसीलिए बोलते हैं ना असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाएंगे तो अंधकार से उजाले की तरफ जाएंगे, माया का ग्रिप टूट जाएगा। देन दैट इज द वे टू मूव हेड। माया कभी मरेगी नहीं, माया हमेशा रहेगी, उसमें बस एक थोड़ा सा ओपनिंग खुल जाएगा, वहां से आपको निकलना है बाहर। मैट्रिक्स को तोड़ना है, मैट्रिक्स को पूरा खत्म नहीं करना है, मैट्रिक्स तो रहेगा ही रहेगा। माया इज मैट्रिक्स। तो नियो यूज्ड टू, मैट्रिक्स मूवी देखी है ना, तो नियो used a doorway to get out of that matrix and then create whatever magical results he wanted to create. That is exactly what we will do. तो पेन एरिया में देखना है माया का इम्पैक्ट क्या है। वहां पे जब आप अवेयरनेस की रोशनी लेके आएंगे, अवेयरनेस मीन्स ट्रुथ, ट्रुथ का लाइट लेके आएंगे, you will feel the doorway has opened and that will be the freedom from Maya. Yes, did I give you some clarity on that?
Little. Got little, yes. Good. But I moved ahead. Yeah. So वो जो आपने differentiate create किया ना awareness में और consciousness में, वहाँ पे yes, I could see the difference. क्योंकि if you are focusing the mind somewhere, that is still the part of the mind only. तो mind में ही तो माया है ना? तो thought can be, you can say thought can be either तामसिक, Yes. मैं उसका खून कर दूंगा, मैं सारी उसकी प्रॉपर्टी छीन लूंगा, मैं उसको सड़क पे ले आऊंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा, ये सब थॉट्स हैं, लेकिन क्या है? तामसिक है ना? राजसिक थॉट्स अलग होंगे, सात्विक थॉट्स होगा, फॉरगिवनेस, कंट्रीब्यूशन, कंपैशन, इनके थॉट्स होंगे. तो थॉट्स कैन आल्सो बी इन थ्री कैटेगरीज, योर एक्शंस कैन आल्सो बी इन थ्री कैटेगरीज. तो माइंड के थ्रू ही तो सब कुछ हो रहा है. तो माइंड इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ माया. माइंड के अलग होके, माइंड को अलग करके जब आप कुछ सोचेंगे तो वो माया के थ्रू नहीं होगा, वो डायरेक्ट होगा. वहां पे फ्रीडम मिलेगी. दैट इज अ डोरवे. So first let us look into our life, it will become more clear. To look into a pain area of your life, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप में बहुत पावरफुली माया का इम्पैक्ट दिखता है ना? तो लेट अस कम टू दैट सेम इंडिविजुअल हु सेज आई एम इनकम्प्लीट. ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि बाहर की दुनिया से कुछ भी मिलने से वो पूर्ण नहीं होगा अगर वो पहले से ही अपूर्ण है. तो होता क्या है? सपोज एन इंडिविजुअल, से ए मैन, ही फील्स ही इज हाफ. मैं आधा हूं, अधूरा हूं, अपूर्ण हूं, और दुनिया में कोई ऐसा मिल जाएगा मुझे जिससे मैं पूर्ण हो जाऊंगा. ये उसकी एक विश लिस्ट है, या फैंटेसी है, या एक डिजायर है ना? और ये सब माया के ग्रिप में ही हो रहा है. अभी देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट. तो पर्सन हु थिंक्स ही इज हाफ, पूर्ण होगा तो वन होगा, ये हाफ है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, राइट? एंड ये क्या कर रहा है? ये ढूंढ रहा है ए पार्टनर. could be any partner, I am talking of a romantic partner, could be a business partner, could be anybody. So he is looking for a partner who is going to make him complete, whole, perfect. So he is looking for someone else. इसको half plus half is equal to 1 ये मान के चल रहा है. तो wrong belief कि half plus half is equal to 1. In relationship it doesn't work that way. In relationship it is half into half. तो क्या होगा? He finds somebody who is half and he thinks perfect हो जाएगा, fulfilled हो जाएगा. The result is half into half is equal to 1/4. He is left with a quarter. Instead of becoming one, he has become a quarter, and then he is more disgusted, more disgruntled, more upset in life. Have you seen people like this? एक मैरिज से दूसरे मैरिज में, दूसरे मैरिज से तीसरे ब्रेक. So you can have many examples of celebrities who are going through that. You can have many examples of people who are going through that. एक रिलेशनशिप टूटा, दूसरे में घुस गए, वर्स्ट रिजल्ट, उससे भी खराब रिजल्ट आए. गेट माय पॉइंट? तो क्या हो रहा है? The whole concept of I am incomplete, somebody out there will complete me, that is a rubbish thought. That is the grip of Maya. अब इसमें ट्रुथ क्या है? I am whole, I am complete, I am perfect, I am one. Now I am looking for someone with whom I can share my completeness. I don't want anything from them. I want to share my completeness and wholeness with my partner. Now this is a very strong foundation. That relationship will be very powerful and lasting, and will actually move you forward spiritually also. Yes or no? How many of you can connect with it? Yes. तो अगर आप उसी कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं तो आप बार बार वही गलती करेंगे, क्योंकि आपने कार्मिक लेसन सीखा ही नहीं. पर अगर आप इवॉल्व होते हैं तो एक बार मिस्टेक हो सकती है, दूसरी बार कॉन्शियसनेस विल टेक यू टू अ हायर लेवल, and you will feel that the relationship is more fulfilling, and now you are in a much more stable condition to enjoy life. Yes or no? How many of us have seen that? Yes? Good. So anybody who wants to share? So I've touched all the three areas: health, wealth, and relationship, and how Maya can actually impact you in a very powerful way and create a lot of suffering and misery for you. That part can be taken care of if you are moving, if you are simply looking at that area with the truth.
with the light of the truth, and that will create magical results in that life, and you will get a doorway to be free from Maya. Yes. लेकिन एक सर कॉमन आदमी को माया से निजात पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन आदमी को सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पे चलूंगा. He has to be brutally honest with himself first. He can't live in self-deception. शीशे में देख के सच बोलना चाहिए अपने आप से, औरों से बेशक ना बोलो, हर एक को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शीशे में देख के अपने आप को तो सत्य बोलोगे, सत्यनिष्ठ बनना. लोगों की प्रॉब्लम ये है, हम we are committed to people rather than being committed to the truth. आप किसी भी स्टोरी में देख लो, रामायण में दशरथ was committed to Kaikeyi, the person had become central in his life rather than truth being central in that life. एक आम आदमी को सबसे पहले अपनी जिंदगी का आधार किस पे रखना है? सत्य पे, लोगों पे नहीं, रिश्तों पे नहीं, डेसिग्नेशन पे नहीं, पुत्र मोह और पत्नी मोह पे नहीं. ये शुरुआत है. Sure. Yeah. So look at what is important for you in your life. Look at where is truth not present in your life. Bring that truth in your life and you will see magic. मैं कहीं पढ़ रहा था, अच्छे इंसान मत बनो, सच्चे इंसान बनो, फिर समझ जाओगे सच्चाई में ही अच्छाई है. हम सच्चा बनना पसंद करते हैं, नहीं, हम अच्छा बनना पसंद करते हैं. लोगों की नजर में अच्छा बन जाओ, मास्क पहन लिया, बाद मैं अच्छा आदमी हूं, अंदर से जो मर्जी हो, अंदर से स्मॉल, वीक, मिजरेबल, फेलियर, लेकिन ऊपर से मास्क लगा लिया, मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे प्यार कर लो, प्लीज एक्सेप्ट मी. राइट? ये सेल्फ डिसेप्शन है. पहले सच्चे बनो, अच्छे आप बनी जाओ. Yes, right, Amanu? I hope I have answered you, though it was a very Yes, sir. brutally honest kind of a reply, huh? But that is No, the truth. it is really good one. Sir. Thank you. That is the truth. Yes, let me see who all have joined. Mishtha, okay. Mishtha, Ravi Math have joined, and I am not aware of them. So please introduce yourself if you want to, or if you want to share something, what is going on in the discussion. If you want to share your views, please go ahead. Anybody who wants to share? We have 10 minutes to the closing time. So anybody has any kind of question, anything you want to share, please go ahead. Good, Kirit ji, anything you want to share? Okay, Nivedita ji, go ahead. सर वही पूछना था, जैसे आपने बोला ना कि माया में से बाहर निकलना, हाँ, ये तो निकल गया था. दोबारा बोलिए. माया में से बाहर निकलना, जैसे नीवो निकल गया था दरवाजे में से बाहर. हाँ, वैसा कोई दरवाजा हमें कहाँ दिख रहा है सर? पहले तो वही मैं बता रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग पॉइंट है सफरिंग एंड मिजरी कहाँ है आपकी लाइफ में, पेन कहाँ है, पेन को ढूंढिए. ऐसे ढूंढने से नहीं चलेगा. हाँ, पेन एरिया ढूंढ लिया आपने, उस पेन एरिया में देखिए कि अंधेरा कहाँ है, मतलब इग्नोरेंस कहाँ है. कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है, तभी तो मिजरी है ना, तभी तो पेन है. कोई रॉन्ग कंसेप्ट है, रॉन्ग आइडिया है, रॉन्ग बिलीफ है. जैसे मैं अभी बता रहा था, कोई अधूरा है और वो सोच रहा है कि कोई और मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा. ये बिलीफ ही गलत है, इसमें सफरिंग ही मिलेगी. तो हर सफरिंग के पीछे एक रॉन्ग बिलीफ है, एक रॉन्ग कंसेप्ट है, एक इग्नोरेंस है. उस इग्नोरेंस की जगह विजडम ले आइए, ट्रुथ, सत्यनिष्ठ, सत्य को पकड़िए. वहां पे सत्य क्या है ना? जब सत्य मिल जाएगा, जो जैसा है वैसा एक्सेप्टेंस, यू मीन टू से? नो, फाइंड द ट्रुथ. व्हाट इज द ट्रुथ? अगर लोगों की बात कर रहे हैं, एवरी सोल इज प्लेइंग रोल.
अब कोई हो सकता है जो भिखारी है, कोई कपड़े सड़े हुए हैं, मक्खियां भिन भिना रही हैं, उस पर बीमार है, एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है, पर वो सोल है. सोल इज प्लेइंग ए रोल ऑफ ए बेगर. एज ए सोल, सोल टू सोल, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर दैट. ये ट्रुथ है. पर अगर मैं बोलता हूँ छी 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 छी, ये किसको देख लिया, आज बर्बाद हो गया, मैं जिंदगी बर्बाद है, ऐसे गंदे लोगों को तो मार देना चाहिए, ये वो, अब मैं क्या कर रहा हूँ? समझ गए? तो ये ट्रुथ नहीं है. आई एम नॉट फॉर लिविंग द ट्रुथ. I have forgotten the basic truth that every soul is playing a role. I am a soul playing a role. He is a soul playing a role. The soul level we are all one. ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है. अब इस ट्रुथ से एटलीस्ट मैं वो छीछी छीछी बोलना तो बंद कर दूंगा ना. Now I will have some compassion for that. शायद मैं उसको खाना दे दूं, शायद मैं उसे ब्लैंकेट दे दूं, शायद मैं उसको थोड़ी दवाई दे दूं, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं. करेक्ट? राइट? तो हर इंसान को एक सोल के रूप में देखना है. सोल प्लेइंग ए रोल, अगर इंसान है तो. बाहर की कोई भी सिचुएशन है, आपको लगता है ये मुझे चाहिए, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, दिस इज पार्ट ऑफ द जगत. जगत मिथ्या है. वो मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, वो नहीं मिला तो भी कुछ नहीं होने वाला है. तो इच्छा और अनिच्छा दोनों से फ्री हो गए आप, ग्रहण और त्याग दोनों से फ्री हो गए आप. पड़ोसी मर्सिडीज ले आया तो मेरे को मर्सिडीज लाने की जरूरत नहीं है. उसके सफेद कपड़े हैं तो मेरे को उससे ज्यादा सफेद कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है. तो इच्छा भी नहीं रही, अनिच्छा भी नहीं रही. ना किसी चीज की डिजायर है, ना किसी चीज का नॉट डिजायर. ठीक है ना? यानी कि ग्रहण भी नहीं चाहिए, त्याग भी नहीं है. न राग है, ना द्वेष है. राग क्या है? आई आई लाइक दैट, आई कांट लिव विदाउट इट, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, ये राग है. द्वेष क्या है? ये घटिया इंसान है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, ये पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में आ गया है, दफा हो. ये द्वेष है. ठीक है? तो ना राग है, ना द्वेष है. ये वैसे ही है जैसे कबूतर मेरी बालकनी में बैठा हुआ है. अगर मुझे राग होगा तो मैं क्या कहूँगा? बड़ा अच्छा कबूतर है, इसको पकड़ लेता हूँ, इसको पिंजरे में डाल देता हूँ, मजा आ जाएगा, कसम से गुटरगुम करता रहेगा, बहुत मजा आएगा. अब उसको पकड़ लिया मैंने, या पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या सोच रहा हूँ. ये क्या है? ये राग है. द्वेष क्या है? ये कबूतर आ गया, ये अब कपड़े खराब करेगा, बीट करेगा, बदबू करेगा, कपड़े दोबारा धोने पड़ेंगे, इसको जान से मार देता हूँ. ये द्वेष है. राग और द्वेष दोनों नहीं है. मैं धूप सेक रहा हूँ, कबूतर भी धूप सेक रहा है, मजे लो, 2 मिनट बाद वो उड़ जाएगा. आई एम हैप्पी, कबूतर इज हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी. न राग है, न द्वेष है. आई एम ए विटनेस. कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं है. मैं साक्षी हूं. यहां माया से फ्री. मेकिंग सेंस? यस? या. तो एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर? बाहर की दुनिया में वस्तु व्यक्ति यही है. वस्तु है या व्यक्ति है या कोई परिस्थिति है. इन तीनों के अगर चुंगल से आप बच गए, ये ना चाहिए, ये हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, ये मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, देन यू आर फ्री. शशि, हाँ जी, हाँ जी, हाँ श्री जी. जी बताइए. अब जो यस मुझे समझ में आया है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है. क्या बात है? पर मेरा जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि मैंने माया के सब भोगों को सच समझकर जाना है. और जब तक मुझे वो भोग मिथ्या नहीं लगते, तो मेरे अपने भोग, मेरे शरीर के सुख, मेरी पोजेशंस, मेरी फैमिली, सब कुछ उनके ऊपर मैं जीत नहीं पा सकती. और उसके लिए मुझे पहले निरीच्छा होना है. और निरीच्छा होने के लिए मेरा ईगो, मेरी हस्ती सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है. टिल माय माइंड इज इन माय कंट्रोल, और मैं निरीच्छा नहीं हो सकती. फर्स्ट आई हैव टू कीप माय माइंड, जो राग द्वेष अच्छा बुरा सब जो द्वैत हैं,
इन डुअलिटी से ऊपर होना है। और मन को वश में करने के लिए मुझे अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल चाहिए। ये इंद्रियां ही हैं जो मन में ही मेरा जगत बना लेती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं भटक जाता हूँ। लाइक कभी तो जगत सच लगता है, कभी झूठ लगता है। झूठ लगता है तो आई एम इन अ पिट, और सच लगता है तो आई एम लाइक जंपिंग, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। आपने एक शब्द अच्छा बोला, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। अगर सुख का समय आया है वो भी जाएगा, अगर कोई कष्ट भी आ गए हैं उन्होंने भी चले जाना है। तो आई शुड बी कंटेंट इन माई सेल्फ। जो चल रहा है इट्स फ्रॉम यूनिवर्स एंड दिस इज ऑल इज डिजर्व्ड बाय मी। एंड आई बिलीव इन कार्मिक थ्योरी। जो भी मैं करके आया हूँ सामने आ रहा है, और धीरज से मैं उसको सहन करूं तो इट्स गुड। कि जगत को मिथ्या करने के लिए निरीक्षा का मेरा फॉर्मूला ये है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वी आर रीचिंग दैट पोजीशन नाउ। मे बी माई एज इज टीचिंग मी, बहुत देखे कष्ट, बहुत देखे सुख, बेस्ट ऑफ लाइफ आई लेड। एंड टुडे आई फील वो भी सच नहीं, वो भी सच नहीं। और आज भी जो मेरे साथ अच्छे हैं वो भी सच नहीं, जो गलत है वो सच नहीं। आई सी फर्स्ट देव कम फ्रॉम द सेम सोर्स, परमात्मा से वो आत्मा आई है। तो फर्स्ट आई से दे आर ब्रह्म, then I go to their rang, roop, shakal, status, what they are wearing, how are they related to me. I am myself. और मुझे उस पोजीशन में पहुंचना है when I am also nothing, ना कुछ मेरा है। एंड आई, मैं भी नहीं हूँ ना जगत भी नहीं है, सब ये एक सीन जाता है दूसरा सीन आ जाता है। आई कैन नॉट होल्ड एनी सीन, it's again changing. That Wonderful. change, I have to get accustomed to it. Wonderful. Amazing. No, I am just here for a short while, musafir की तरह। I have to go also. So वो पकड़ भी कम हो गई है कि this is my, जहाँ मेरा कहा वहाँ माया आ गई। और माया ही है which is as प्रभावशाली as भगवान himself, the परमात्मा वो उसी का स्वरूप है। Absolutely. Perfect. बहुत बढ़िया. Let's have a big round of applause for Seerat ma'am. No, you said it. I've just collected what you said. I've imbibed it and liked it. Absolutely perfect. Wonderful words of wisdom. Thank you. Thank you so much for sharing that. And I'm sure people will learn from your sharing and impact their lives. Very good. Once again. Great. Thank you. Yes, Anirudh ji, you want to share something? Go ahead. हाँ यस, मैं मेरा अभी जो माया है, जो है ये जगत जो है वो माया है। तो जो हमारी लाइफ है 90-100 साल की जो लाइफ इस पर धरती पे आई है वो माया के बीच में आई है। और जो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, सोल लाइफ है, वो तो हजारों साल की है, पहले भी थी आगे भी रहेगी। तो इस 90-100 साल की उम्र में जब यहाँ हम रहे हैं तो ये माया है। तो इसको माया को रहते हुए हमें अपने आप को हैप्पीनेस और पीस में कैसे रहना है, तो वो जरूरी है। तो माया को पहचानना पड़ेगा, तभी हम उसको जान पाएंगे कि हमें पीस और हैप्पीनेस कैसे चाहिए। तो उसके मैं इन सिंपल टर्म्स में दो तरीके मुझे लगे हैं। एक तरीका तो ये है कि जो है हमें ये जो अपने माया को जो है जो है यूनिटी में रहना है कि किसी से हेट नहीं करना है। अगर हेट करेंगे, हार्म करेंगे तो उससे हम अलग होंगे। तो माया से जब माया अलग होगी तो वो दुख देती है। हमें माया को जोड़ना है, यूनिटी करनी है, वननेस लानी है माया के साथ भी। तो उसका तरीका यही है कि यूनिटी लोगों के साथ, किसी को हेल्प करनी है, हेट नहीं करनी है, और वननेस लाएंगे तो वो माया दुखी नहीं देगी। सेकंड जो है कि जो मैंने पहले भी बताया कि हम फैमिली है, घर है, कुछ मिनिमम नीड्स तो चाहिए जीने के लिए। तो जितना जो मिनिमम नीड्स जिसकी जितनी भी है उसको पाना
वो मैं उसको माया नहीं मानता। उससे ज्यादा पाना है वो दुखों की जड़ है, वो माया है। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना, अटैचमेंट करना, अटैचमेंट तो वैसे भी गलत है, जो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना वो गलत है। तो दो चीजें जरूरी हैं, एक तो मिनिमम नीड्स पे रहना है और यूनिटी में, वननेस में काम करना है, तो फिर माया से के चक्कर में फंसेंगे नहीं। Okay, okay, good. So this is your learning and your interpretation of how you can move हाँ, live a ये जो life. मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। Very good, बहुत बढ़िया. Let's acknowledge अनुरुचि जी, बहुत बढ़िया चीज. वेरी नाइस। तो आपके प्रैक्टिसेस हैं जो, अगर दो शब्दों में बोले तो एक तो अपरिग्रह बोला आपने, नॉन एक्यूमुलेशन, है ना, हाँ कि जी, एक्यूमुलेट नहीं करना, जो रिसोर्सेज चाहिए उसको यूज वो, करो, बाकी शेयर करो. हाँ जी, और एब्सोल्युटली दूसरा परफेक्ट. वननेस, और दूसरा यूनिटी में रहना। वननेस, तो वही बात हो गई कि हाँ जी, एवरीबॉडी इज अ सोल प्लेइंग ए रोल एंड वी आर ऑल कनेक्टेड. हाँ, सिंपल यस है. यस यस। आप अपनी कैपेसिटी से जो कर सकते हैं वो करेंगे एंड कंट्रीब्यूट टू हाँ, पीपल. बिल्कुल सर। परफेक्ट. जहाँ जहाँ बहुत जरूरत हो, बढ़िया, जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ हेल्प कर दो, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया. यस. एनीबॉडी सर एल्स सर वांट्स टू एक शेयर? क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, अमन जी शशि बोलिए. सर, मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि सर अगर हम लोग पहले भी थे और हम आगे भी रहेंगे, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अगर आगे भी रहेगी और हम पहले भी रहे थे, तो फिर हम ये अपने अपने माया का रोल निभाने के लिए क्या हम जन्म लेकर आए हैं क्या पृथ्वी लोक पर? माया का कोई रोल नहीं है, माया का एक कवर है. माया इज कवरिंग द ट्रुथ. आपको उस कवर को हटाना है एंड देन यू विल नो दैट यू आर द ट्रुथ. आप डिवाइन हैं, आप भूल गए. वी आर गॉड्स विथ एमनीसिया, करेक्ट? You were part of the divine, you came here and you forgot that you are part of the divine. And why you are जी। not able to remember it? Because Maya is always making you forget. माया वो इल्यूजन है जो आपको याद करने नहीं दे रही है कि आप डिवाइन हैं. आप डिवाइन से ही आए हैं और डिवाइन में ही जाएंगे, या आप डिवाइन ही हैं, सिंपल है ना. जी। अब वो याद करने के लिए आपको माया के ये जो आवरण है, माया का आवरण मीन्स माया का जो कवर है, उसको हटाना है, 3 गुणों को हटाना है. तो आपके तामसिक संस्कारों को ढूंढिए, उनको ट्रांसेंड करिए. फिर राजसिक संस्कारों को ढूंढिए, उनको ट्रांसेंड करेंगे. और सात्विक गुणों को जो स्थित होना है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे. ये लाइफस्टाइल अगर आपका है तो आप माया से, इंपैक्ट से थोड़ा फ्री हो जाएंगे एंड यू विल मूव क्लोजर टू द ट्रूथ एंड यू विल रियलाइज आई एम डिवाइन. अब ये कई तो जन्मों सर से करते इसमें हुए आ रहे हैं, तब इस लेवल पे पहुंचे हैं. तो हो सकता है तो ये सर आखिरी जन्म हो. इसमें ओके, हाँ जी, बोलिए. थैंक्स फॉर दैट। ये जो चक्र हीलिंग सर हम जो करते हैं, क्या ये एक तरीका है अपने आप को माया से यस, निजात दिलाने का? यस. माया impacts us in the form of ego, right? और लोअर 3 चक्रस जो हैं हमारे, अब मैं यहाँ पे अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा टेक्निकल, बट लोअर 3, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द 7 चक्रस, और एवरीबडी अवेयर ऑफ द 7 चक्रस, यस और नो? तो फिर मैं नहीं यस सर। बोलूंगा. हाँ, तो लोअर 3 चक्रस आर कंप्लीटली अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ईगो, है ना. उसके ऊपर ईगो का इम्पैक्ट कम होता है, यानी कि माया का इम्पैक्ट कम होता है. लोअर 3 चक्रस में ही माया का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आएगा. वर्ल्डली मेजर, वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली डिजायर्स, ये सब आपके लोअर 3 चक्रास में है. रूट चक्र, सेक्रल चक्र एंड सोलर चक्र. जैसे ही आप हार्ट चक्र में आते हैं, डिविनिटी हैज ओपनड अप, डिविनिटी हैज ब्लॉसम्ड इन यू, करेक्ट? तो लोअर 3 चक्रास के कॉन्शियसनेस में है तो आप माया के ग्रिप में है. वहां पे फ्री नहीं हो सकते. फ्री होने के लिए आपको ऊपर ही आना पड़ेगा. इसलिए चक्र मेडिटेशन एंड द चक्र हीलिंग्स आर वेरी वेरी पावरफुल. एंड आई myself have been following, as a healer I've been following this for the last 25 years, and it has helped me tremendously in raising the consciousness of people all over the world, from the lower chakras to the higher chakras. Yes, it's a very powerful tool, and I know you have been practicing chakra healing, so keep doing that. That's a very powerful way to be free from the impact of ego, and ego is nothing but Maya, right? For every individual, Maya का impact ego के through ही आएगा ना. Yes. Okay, let's acknowledge Aman ji. Now we have exceeded the scheduled time by 6 minutes, but I am willing to take more time. Anybody who wants to share? Mayastha ji and
Kishore ji, anything you want to share before we close? And today we heard wonderful words of wisdom from Sirat ma'am, and she's from Bombay, and she's attended the session second time. Last week she had attended for a few minutes, and today she is there right through. So I'm happy. oh yes, and we are really, really proud of your achievements. Thank you. Thank you for being here. Sir, even Kishore ji is not from Delhi. He's also from outside. Okay. I'm also from Nasik now, Bombay, Oh, Nasik. very good, Kishore ji. So just share how was the session for you? आप पहली बार आए हैं? सर नहीं काफी कनेक्टिंग था सेशन सर. तो एंड टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर. मेन तो वही माया एंड अटैचमेंट, दैट इज द biggest devil actually. So eye opener and something to really work upon. Yes, great. So we will have more topics coming up in the coming Wednesdays, and maybe we can have a sequel on this later on. Yeah, today many people are not there, so we can always have this discussion, but we will have related topics only, so it will all connect together, and the puzzle of the life will be opened up for you. Yes, the life is a puzzle, and we need to solve it. Great. Anybody else who wants to share? Otherwise, we will close for the day. And Mahisha ji, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? आपने कुछ नहीं बोला है. If you can share, where are you from, which group you are in, and how was the session for you? It will be good. Okay, that's fine. So you can share that later. And anybody who wants to join our group can leave your number in the chat box, because we have a group, Divine Healing Valley. We will add you in the group, and you can be aware of our forthcoming programs. Of course, this is a Wednesday regular weekly meet, and the link remains the same, so you can always join the Wednesday meet. Yes, but we have many other activities. So if you want to join the group, leave your contact details in the chat box, and we will get in touch with you and add you in the group. Anybody else wants to share? Shashi ji, Hanji. there's a question. Hanji. Like Maya, we always take it in Tamogun, Rajogun, what you said. But Maya can be Satoguni also, like हम ये बड़ा मायावी है, ये बड़ा देहाध्यासी है, इसको बॉडी कॉन्शियसनेस. We always see these things in the negative. And how to elevate in Maya, like doing good for others. Like I think of others' development, they come up and I'm. इसको जरा आप बताएं. आपने बताया 3 गुण हैं माया के. बताता हूँ. तो बेसिकली जो तमोगुण है, that is the inertia. It is the dark forces. Dark forces you can say, or the inertia. And यहाँ पे लेजीनेस ज्यादा होगी, करेक्ट. तो इनर्टनेस ज्यादा होगी, कुछ ना करने की इच्छा ज्यादा होगी. तो मूढ़चित्त जो बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं नॉर्मली डोंकी माइंड. डोंकी माइंड होता है ना, कुछ नहीं करना है. तो मूढ़चित्त जो होते हैं उनको हम तमस में मानते हैं, तमोगुण. तो तमोगुण इज अ डार्क, you can say, inertia forces. Rajogun is full of action, high passion, energy, action, all that is Rajogun. तो मार धाड़, छीना झपटी, promotion, competition, right? All this will be part of fear, anger, hatred, envy, jealousy. All these emotions will be part of the Rajogun, right? Satogun is all about, you can say, wisdom. तो माया के भी जो 2 पार्ट हम बोलते हैं, या फर्दर स्टडीज में आता है वैसे तो, पर मैं बता देता हूँ एक बार. माया में एक होता है अविद्या माया और एक होता है विद्या माया. अविद्या माया बाइंड्स यू, विद्या माया लिबरेट्स यू. तो माया की काट से बचने के लिए माया का ही एक पार्ट है जो स्क्रिप्चर्स में जो विजडम मिलती है, वो माया के थ्रू हमको लेके जाता है. तो परमात्मा का जो ज्ञान है, जो आत्मबोध है, ये सब, ये भी माया का ही पार्ट है ना, क्योंकि इसी वर्ल्ड का है, बट वो माया से बाहर निकालता है. That will make you a neo who can go through the matrix, right? तो इसमें compassion, contribution, love,
फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीजें आती हैं सतोगुण में, और ये आपको सतोगुण से होके तीनों गुणों के बाहर निर्गुण की तरफ लेके जाएगा, है ना, जहाँ पे हम परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा में लीन होता है। ठीक है, ये है। लेकिन यहाँ पे भी सतोगुणी अहंकार भी आ जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बाकी सब मूर्ख हैं, बाकी सबको मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, ये सब अगर ज्ञानी में घमंड आ जाता है तो इसको सतोगुणी अहंकार बोलते हैं। इससे बचना होता है। तो ज्ञान मिल गया तो उस ज्ञान का अहंकार नहीं करना है। तो क्योंकि अहंकारी ज्ञानी फिर वो नीचे आ जाता है बड़ी जल्दी, वो रजोगुण में और तमोगुण में पहुंच जाता है वापस। ठीक है ना, तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो सीरत मैम, इज दैट ओके, या मैं कुछ और? आपने जो कहा 3 चक्रों में है, वे भी want pleasures और सब अच्छी माया, then like Guru helps us to elevate to the 4th chakra and higher up that way. Yes, because the Guru normally would be at a, आपको आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र के कॉन्शियसनेस पे है तो कम से कम गुरु होगा, अभी वो आपको गाइड कर सकता है, जो लोगोत्री चक्र से आपको लेके कम से कम अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र तक ले आए या थ्रोट चक्र तक ले आए। ओके, क्योंकि थर्ड आई से क्राउन चक्र की जर्नी तो हर एक की इंडिविजुअल होती है। तो वो आपको सतोगुण से निर्गुण बनाने वाला प्रक्रिया है, वो हर एक की अपनी होती है, और उसकी उस जर्नी का कोई स्पेसिफिक मार्ग नहीं होता है। पर ज्यादातर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में या क्या बोलते हैं उसे, राजयोग, तो इनमें इसका मार्ग दिखता है। लेकिन हाँ, 6 चक्रास तक आप आराम से पहुंच सकते हैं किसी भी साधना से, चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, राजयोग हो या फिर ज्ञान योग हो। हाँ जी, इज दैट ओके सीरत मैम? yes, very good. Thank you. Let's acknowledge Seerat ma'am. She is really curious and very, very passionate seeker of divine. Yes. All right. So with this, we come to the end of the session. We are 13 minutes over the scheduled time. So I'll close the session now. Thank you very much for your participation. Again, a round of applause for Seerat ma'am. Thank you, everybody. Be there for the next Wednesday. We will come up with more interesting topics. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Good night. Thank you. Good night. Bye.